Hello, good morning, students. Am I audible? Hello, Priyanka, Roshni, am I audible? Okay. So, which college are you from, Priyanka and Roshni? Yes, ma'am. Ma'am, I am from Prafulla Chandra College. Prafulla Chandra College. And Roshni, which college are you from, dear? Roshni Sharma, please unmute and tell me which college are you from. Ma'am, I am from Jalan College. Jalan College. Okay, so one from Prafulla Chandra and one from Jalan College. So today, as it is in MCOM Sem 1, your first paper, that is CC 101, will be taken by me, Rajni Shah. I'm a PhD pursuing student. And along with that, I'm connected to an institute as well, a college, but you cannot name that as it is not allowed to take private tuitions. Okay, so let's start with 101 OBHRM and call first one. For SEM, we'll start with module 1, chapter 1 today. So first we'll discuss the syllabus and the module, and then we'll start with the chapter. So today we have here two modules, module 1 and module 2. So module 1 says organization behavior and module 2 says HRM, human resource management. तो आपका जो syllabus है OB HRM, OB is module 1 and HRM is module 2. OB is module 1 and HRM is module 2. Both the modules have 4 chapters each, 10 marks each. Okay, so 10 into 4, 10 into 4. So all the chapters are equally important. Okay, so 10 marks they've written, but you have full paper as 40. Okay, so the correct division is not mentioned here. So it is written 10, 10, 10, 10, but you have optional. You have options from these chapters. In that case, you'll have 20 on each segments. 20 from HRM and 20 from OB. 40 marks paper. Chapter 1 consists of the concepts of organization that we'll be doing today. So let's move forward. I hope you have the soft copy or the hard copy. What do you have? You have the book or the PDF? Roshni and Priyanka, do you have a book or you have the PDF? मैम सर ने अभी तक कुछ दिया नहीं है हम लोगों को. Okay, so please collect your materials. Okay, so let's begin. As it is, आपको screen दिख रहा है ना? As it is, you don't have the book right now, so मैं जो mark कर रही हूँ, इसको आप copy में लिख लीजिएगा जो important है. As it is, you don't have the book. Once you have it, आप book में mark कर लीजिएगा. ठीक है? ओके मैम. ओके मैम. Chapter 1. The name of the chapter is the concepts of organization. इसका syllabus we'll discuss. So इसका है concept, understanding of organizational behavior, OB, and OB in the global context. ये हम लोग का syllabus है. Total first chapter कितने पेजों का है? One. Not very big. Five. Five pages. So it's completed today itself. थोड़ा डिटेल में करेंगे. कॉपी पेन आपके साथ में रखिए. जहाँ पे जरूरत होगा मैं अलग से नोट्स दूंगी. ठीक है? So introduction to OB, organizational behavior tries to understand human behavior in the organization. OB मतलब क्या? Organizational behavior. एक organization मतलब क्या? एक firm, एक company, एक जगह जहाँ पे एक बॉस रहता है और एक एम्प्लॉय रहता है. एक एम्प्लॉयर रहता है, एक एम्प्लॉय रहता है. तो ऑर्गेनाइजेशनल में या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या रूल्स है, क्या टेक्निक्स है, ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसी को हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल्स में. So organizational behavior tries to understand human behavior
इन द ऑर्गेनाइजेशन, कैसे एम्प्लॉयज रिएक्ट करते हैं, क्या जरूरत पड़ती है एम्प्लॉयज को, क्या नहीं पड़ती है, ये सब जानने के लिए हम लोग करने वाले हैं ओबी, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. So OB is a part of total management but plays a very, very important role in every area of management and has been accepted by all the people concerned. तो ओबी देखने में लगता है बस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होगा, बट ये ऑर्गेनाइजेशन या मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है, ये हर एक एरिया ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट है, क्योंकि हर एक जगह ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बहुत जरूरी है. वहां पे लोग कैसे अडाप्ट कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं, कैसे सब कुछ चल रहा है, ये सब जानना और इसको लेके थोड़ा फोकस्ड रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अवेयर रहना कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनको क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ सकता है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. The managers now understand that to make their organization more effective, they have to understand and predict the human behavior in the organization. कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे, कैसे हम अपना काम और भी बेहतर करेंगे, कैसे हम लोग अपना रिजल्ट देख पाएंगे. बस काम करने से नहीं होता है, वी नीड टू वर्क इट आउट इन द करेक्ट वे. अगर हम लोग करेक्ट वे नहीं यूज कर रहे हैं, या फिर हम लोग गलत रास्ते पे चल रहे हैं, या फिर हम लोग सारा दिन दीवार को हिलाने की कोशिश कर, दीवार हिलता है क्या, नहीं हिलता है, तो मतलब वो काम बेकार हो गया सारा दिन का. तो आप काम कर रहे हो लेकिन करेक्ट जगह पे नहीं कर रहे हो, करेक्ट वे में नहीं कर रहे हो, तभी आपको आपके जो एम्प्लॉयर है वो गाइड करेंगे कैसे काम को आगे बढ़ाते हैं, कैसे इफेक्टिव या फिर गोल्स को कैसे रीच करते हैं, कैसे ह्यूमन बिहेवियर अपना ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम करेगा. ठीक है, बात समझ आया? इंट्रोडक्शन टू ओबी, ये वाला पार्ट समझ आया स्टूडेंट्स? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई भी वर्ड में आप बता सकते हो, मैं यहाँ पे कीवर्ड से भी अंडरलाइन करूंगी. ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या करता है? ट्राइज टू अंडरस्टैंड व्हाट द ह्यूमन बिहेवियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन. कहाँ पे? ऑर्गेनाइजेशन में. सो ओबी किसका पार्ट है? टोटल पार्ट ऑफ टोटल मैनेजमेंट, नहीं बस एक ऑफिस में, बट टोटल मैनेजमेंट का पार्ट है. और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. किस जगह पे? एवरी एरिया, हर एक जगह पे मैनेजमेंट का, हर एक जगह मैनेजमेंट का. और ये एक्सेप्ट किया है सबने. ठीक है, पीपल कंसर्न, हर एक पीपल कंसर्न ने एक्सेप्ट किया है. द मैनेजर्स नाउ अंडरस्टैंड दैट टू मेक द ऑर्गेनाइजेशन मोर इफेक्टिव, काम करने के लिए, काम बेहतर कराने के लिए, ये होना, प्रेडिक्ट करना ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन बहुत जरूरी है. कि कैसे ह्यूमंस रिएक्ट करेंगे टू आवर ऑर्गेनाइजेशन, टू द वर्कलोड, टू द, जैसे अभी आपने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था? प्रियंका और रोशनी, क्या आपने Yes, इंडिया ma'am. और Yes, ma'am. ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा था? Yes, ma'am. रोशनी, आपने देखा था? हाँ, तो इन दैट केस आपको पता था कि इंडिया, कहीं ना कहीं पे इंडिया फील कर रहा था कि शायद इंडिया हार गया था. इसलिए इंडिया का बॉलिंग, इंडिया का बैटिंग, मतलब टॉस हारने की वजह से ही आई गेस वो पूरा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ा. तो वो कैसे रिएक्ट किए ड्यूरिंग द मैच, ये भी एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ही है. वो कैसे रिएक्ट किए ड्यूरिंग द मैच, कैसा काम कर रहे थे, कैसे वो लोग समझ में आए कि उसको कैसे कब काम करना चाहिए. लाइक ऑस्ट्रेलिया वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे जीतना है, बट इंडिया समहाउ उन्होंने मान लिया था मन ही मन कि शायद हम हार चुके हैं. बात समझ आई? तो उन्होंने वो प्रेशर को डील नहीं कर पाया, वो प्रेशर डील नहीं कर पाए. तो इसी को कहते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. देखो, ऑर्गेनाइजेशन में बस ऑफिस में नहीं, मैंने कहा कि हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में काम आता है. तो अभी मैंने एग्जांपल भी दिया आपको. ऑफिस से बाहर मतलब एक क्रिकेट जोन में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया. नाउ मूविंग टू डेफिनेशंस ऑफ ओबी. ये भी बहुत सारे हैं, हम लोग आज तो पूरा करेंगे, बट इसमें से कौन सा आपको लर्न करना पड़ेगा ये मैं बोल दूंगी. आपको लर्न करना पड़ेगा ये वाला, स्टीफन पी रॉबिन्स का. आप बोल रहे हो मैम ये तो थोड़ा बड़ा बड़ा है, फ्रेड लूथेंस या फिर रमन जे एल्डा का इजी होगा क्योंकि छोटा है. बट आई विल ऑलवेज प्रेफर स्टीफन पी रॉबिन्स, क्योंकि इनके डेफिनेशंस बहुत करेक्ट होते हैं. है ना, थोड़ा बड़ा हो तो क्या हुआ, लेकिन समझ में आपको ये वाला करेक्टली आ जाएगा. समझ आ रहा है? और अभी आप मास्टर्स में हो, तो अभी आपका बीकॉम जर्नी बस खत्म हुआ है. आपको आप लोग तो एमसीक्यू वाले बैच थे, तो आप लोग एमसीक्यू दे के आए हो, अभी एमसीक्यू नहीं रहा.
अभी जो करंट बीकॉम बैच है इन लोग का एमसीक्यू नहीं है। जो एग्जिस्टिंग बैच है उनका एमसीक्यू रहेगा। जो सेम 1 में है बीकॉम में, जिनका 4 इयर्स का हो गया है बीकॉम, उनके लिए अब सब कुछ सेम नहीं रहा, एमसीक्यू पेपर नहीं है उनका। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो उसकी वजह से आपको लिखने का हैबिट थोड़ा कम होगा। सेमेस्टर 5 में आपने काफी लिखा था, बट सेमेस्टर 6 में अगेन 2 पेपर ही था आपको लिखने वाला। तो आप दोनों ने मार्केटिंग एमकॉम इन फाइनेंस लिया, राइट? दोनों एमकॉम इन फाइनेंस हो या मार्केटिंग भी हो? रोशनी, आपका आवाज नहीं आ रहा। Yes. जो भी हो मुझे बता देना, और दोनों मुझे टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप में, तो विल स्टे कनेक्टेड। मैं सेव योर नंबर कि कोई डाउट रहेगा, क्योंकि मैं हर एक चैप्टर के बाद क्वेश्चंस देती हूँ, तो क्वेश्चंस आपको लिखने के बाद उसको पीडीएफ बना के मुझे भेजना पड़ेगा। आई चेक एंड सेंड इट टू यू। Okay, so organizational behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, structure have on behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge towards improving an organization's effectiveness. तो organizational behavior एक ऐसा field है जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं the impact of individuals, एक इंसान का होने से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। जैसे कभी कभी देखोगे ग्रुप में, आप कभी घूमने गए हो, या फिर अभी तो प्रियंका, आप कहाँ से हो? ऑब्वियसली यू आर फ्रॉम कोलकाता, बट व्हाट इज योर नेटिव प्लेस? राजस्थान ओके, सो यू आर अ मारवाड़ी। मैम। Okay, so Priyanka, I just came back from Rajasthan a few, not months, but yeah, a few days ago. So you know that when we go to Rajasthan, we do go to Khatu Sham or Salasar. मैम So in that case, yeah, so that is how the organizational behavior of Rajasthanis are, right? You would go there. So how would you react when you meet someone Rajasthani or you meet a Marwadi? You feel good about it? Roshni Sharma, are you from Bihar? So you know Chhat Puja recently, which Chhat Puja hua. So you would know that people together, they meet. Even in Kolkata, there is Chhat Puja celebrated everywhere near the colonies. So yeah, beside my house also, there was Chhat Puja being celebrated. So I saw so many Biharis coming together and celebrating their Parv, and also they were all enthusiastic about it. That should be quite common thing. But in that case, that is also an organizational behavior of how people are reacting to different festivals in society, or different get-togethers. That is how the organizational behavior can be investigated with the impact of the individual. Like what I told you, अगर आप कोई अपने जान पहचान से मिल जाओ, तो यू फील गुड अबाउट इट, राइट? वैसे ही ऑफिस में अगर आप कोई जान पहचान या फिर कोई दोस्त बना लो, तो उसके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप दुश्मन पाल लो, तो फिर काम करने में मजा आएगा? नहीं आएगा, राइट? तो वैसा ही बोला जा रहा है कि कैसे आपके आसपास के ग्रुप आपको ऐसे अफेक्ट कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव ग्रुप होगा तो ऑब्वियसली पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, अगर नेगेटिव ग्रुप होगा तो नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। The structured have-on behavior with the organization for the purpose of applying such knowledge and towards improving an organization's effectiveness. So according to Fred Luthans, organizational behavior is directly concerned with the understanding, production and control of human behavior. तो ये कहते हैं कि directly concerned, हम लोग concerned है about understanding the production and control of human behavior. देखो मैंने कहा ही था कि स्टीफन रॉबिन्स का जो डेफिनेशन है उसमें आप हर एक चीज को समझ पाओगे, लेकिन फ्रेड लुथेंस का कितना छोटा है, बट समझ में नहीं आ रहा। प्रोडक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब आई कैन एक्सप्लेन यू, बट आप जब खुद पढ़ने जाओगे, खुद एक्सप्लेन करने जाओगे, आपको दिक्कत होगी। या मतलब क्या होता है कि आदमी कैसे अपना काम प्रोडक्टिविटी कर रहा है, कैसे अपना कंट्रोल बनाए रख रहा है ऑफिस में, कब उसको अपना बात बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए, ये सब जब एक आदमी को ऑलरेडी पता हो और वो उसको मान के चल रहा हो, तो उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये कह रहे हैं कौन? फ्रेड लुथांस। अकॉर्डिंग टू रमन जे अल्डाग कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज अ ब्रांच ऑफ सोशल साइंस
Social science मतलब how you interact with people, so that seeks to build theories that can be applied to predicting, understanding, controlling behavior in work organization. ये एक पार्ट है सोशल साइंस का जिसमें हम लोग थ्योरीज बनाते हैं और उसको अप्लाई करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि शायद ऐसा हो सकता था या होगा, अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ क्या खामी है, उसको ठीक करते हैं, कंट्रोल करते हैं जब एक्सीड हो जाता है कोई भी कुछ काम, हद से ज्यादा कुछ भी चीज हो जाए उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर करेक्टली होंगी तो ही हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पाएगा। बात समझ आया स्टूडेंट्स? किसी को कोई डाउट? तो डाउट रहेगा तो बताइएगा, बिकॉज फिर आगे चलने में नहीं तो आपको ये डाउट जमता रहेगा ना, तो जितना चाहिए जहां पे भी आपको डाउट हो तो आप मुझे तभी पूछ लीजिएगा, ठीक है बच्चे? ओके, तो यहाँ पे तो अंडरलाइन कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज अ फील्ड ऑफ स्टडी। ये क्या है? एक फील्ड ऑफ स्टडी है। का काम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना। किस चीज को इन्वेस्टिगेट करना? इम्पैक्ट। किसका इम्पैक्ट? इंडिविजुअल्स का, ग्रुप्स का, और एक स्ट्रक्चर का जहाँ पे बिहेवियर देखा जाएगा आदमियों का, कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, क्यों, सच नॉलेज इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। देखो मैंने कहा था ना कि स्टीफन का थोड़ा बड़ा होगा डेफिनेशन, लेकिन एकदम क्लियर शब्दों में लिखा हुआ होगा। आपको क्या लग रहा है फ्रेड लुथांस और रमन जे एल्डाग में ऐसा क्लियरली लिखा हुआ है जैसे स्टीफन पी रॉबिन्स ने लिखा है? नो मैम। इसलिए थोड़ा बड़ा तो होगा, लेकिन देखना अल्टीमेटली वही आपको हेल्प करेगा इन लोगों में। तो हम लोग फोकस करेंगे स्टीफन पी रॉबिन्स पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बाय एनालाइजिंग द अबाउट डेफिनेशंस, हम लोग अगर डिफाइन करना चाहे ओबी को एज बिहेवियरल साइंस, हम लोग क्या कहेंगे? क्योंकि नेचर ऑफ मैन है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, नॉलेज ऑफ ह्यूमन वुड बी यूजफुल इन इम्प्रूविंग द ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। ऑर्गेनाइजेशन के काम बेहतर करने के लिए हम लोग इस चीज का इस्तेमाल करेंगे ऑब्वियसली, ताकि इफेक्टिवनेस बढ़े। या तीन चीजें हैं, नेचर ऑफ मैन, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑफ ह्यूमन वुड be useful in improving an organizational effectiveness. Moving on to the third point, nature of OB. OB मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। यहाँ पे OB लिखना अलाउड है क्योंकि नोट्स है, लेकिन आप एग्जाम हॉल में OB नहीं लिख सकते। यू हैव टू राइट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टूडेंट्स। सो एक स्टडी है ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड व्हेनेवर एन इंडिविजुअल जॉइन्स एन ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों लाएंगे एक यूनिक सेट ऑफ पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब ऑब्वियसली अगर कोई इंसान आ रहा है, हर एक इंसान, आप ये मानोगे कि हर एक इंसान में कुछ ना कुछ मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है, जो एकदम अलग सा होता है या नहीं? यस मैम। तो हर एक के अलग अलग क्वालिटीज होते हैं, तो हर एक के अपने पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर एक का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लाइफ में। तो फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन, और उसमें जब वो अपनी कंपनी में घुसता है तो अपना एक बैकग्राउंड लेके घुसता है, तो उसका पर्सनल बैकग्राउंड भी मैटर करता है। तो सब्जेक्ट ऑफ ओबी इज बेस्ड ऑन फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्या क्या कॉन्सेप्ट? इंडिविजुअल डिफरेंसेस, होल पर्सन, कॉज बिहेवियर, ह्यूमन डिग्निटी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल सिस्टम, म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो ये सारे 7 पॉइंट अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब ईच पर्सन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मैंने पहले ही कहा कि हर एक पर्सन में अलग अलग ट्रेट होता है, अलग अलग क्वालिटी होता है, हर एक का इंटेलिजेंस लेवल अप डाउन होता है, फिजिक चेंज होता है, हर एक का पर्सनैलिटी अलग अलग होता है। डिक्शन मतलब ऑब्वियसली करेक्ट वर्ड यूज करना करेक्ट जगह। डिक्शनरी का पहला वर्ड डिक्शन मतलब करेक्ट जगह करेक्ट वर्ड का इस्तेमाल करना। बहुत लोग होते हैं उनको बातें करने तो बहुत आती है, लेकिन कहाँ पे क्या बोलना होता है उनको वो नहीं पता। तो ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो जहां पे भी जो मन बोल दे। तो ऐसा इंसान जरूर चाहिए जिसको पता हो कहाँ क्या बोलना चाहिए। Or any such trait individual differences mean that management can cause the greatest motivation among employees by treating them differently. अगर आप अपने एम्प्लॉयज को थोड़ा स्पेशल ट्रीट करो, थोड़ा स्पेशली बिहेव करो उनके साथ, तो वो भी अच्छा फील करेंगे ना। कोई अगर आपको नींद से उठ के एवरीडे गुड मॉर्निंग विश कर दे, या फिर आपको कुछ एक स्पेशल मैसेज भेज दे, यू फील सो नाइस, यू फील सो पम्पर्ड।
वही बात एम्प्लॉयज में भी है। शायद अगर एम्प्लॉयज को अगर कोई एम्प्लॉयर 2-3 वर्ड ही बोलते दिन में, जो अच्छा वर्ड हो, मोटिवेटिंग वर्ड हो, तो उसका भी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाए, उसको भी काम करने में एनर्जी आ जाए। सो इफ इट वर नॉट फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, some standards across the board, a way of dealing with all employees could be adopted and minimum judgment would be required thereafter. और इसके बाद जितना जजमेंट जरूरी होगा उतना हम लोग यूज करेंगे. So as a whole person, when an individual is appointed, his or her skill alone is not hired. बस उसका skill नहीं hire किया जाता, उसके social background, उसके likes, उसके डिसलाइक्स, उसका प्राइड मतलब उसका जो है मान सम्मान, उसका प्रेजुडिसेस, उसका जो खामी है इसमें बोलते हैं, आर ऑल्सो हायर्ड. आप एक इंसान को बस उसकी अच्छी चीज के लिए मतलब जान नहीं सकते, कभी कभी उसका बुरा भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है इंसान में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा. आप बस अच्छे पे फोकस करोगे और बुरे पे नहीं, तो फिर काम कैसे चलेगा? यू हैव टू थिंक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. एक इंसान तो अच्छे बुरे से का ही बना होता है ना, तो आपको दोनों का सोचना पड़ेगा. सो व्हेन द होल पर्सन इज लाइक अ फैमिली. अब कोई ऑफिस में आप किसी को हायर कर रहे हो, तो अगर आप वो आपके साथ काम कर रहे हो तो आपका फैमिली बन जाता है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते काम से. रीजन है कि मैनेजर शुड एंडीवर टू मेक द वर्क प्लेस होम अवे फ्रॉम होम. क्योंकि बहुत लोग बहुत बाहर से काम करने आते हैं, तो उनको काम करने आते वक्त आप देखोगे कि उनका घर से बहुत दूर हो जाते हैं, वो उनको छुट्टी नहीं मिलती है, घर में किसी की तबीयत खराब हो फिर भी वो जाके देख नहीं सकता. तो ये सब चीजें ऑलरेडी उसको खटकती है. अगर आप उसे और भी गंदा बिहेव करोगे तो वो अल्टीमेटली काम छोड़ देगा या फिर वो क्विट कर देगा लाइफ. तो इससे इम्पोर्टेंट है कि आप एक एम्प्लॉय को होमली फीलिंग दो, उसको होम लाइक फीलिंग दो, क्योंकि अदरवाइज वो एम्प्लॉय भी इंसान है, उसको भी कुछ फीलिंग्स है, वो भी एक रोबोट नहीं है कि सारा दिन बस काम करे. बात समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके. रोशनी, बात समझ आ रही है? Yes, ma'am. ओके. So next we move on to caused behavior, the behavior of the. आज मैं पूरा हिंदी में ही बोल रही हूँ, तो मुझे पता नहीं कि आप लोग को हिंदी कंफर्टेबल है, इंग्लिश कंफर्टेबल है, तो आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल होगा आप मुझे बता सकते हो. बंगाली में आपको एक्सप्लेन कराना है, आप जिधर भी जो भी बात है आप बता सकते हो. मारवाड़ी में कुछ बोलना है तो मारवाड़ी में भी बोल दूंगी. बिहारी मुझे आता नहीं है, जितना टूटा फूटा आता है आई ट्राई. बट अगर एक कॉमन मतलब एक मीडियम हो समझने का, तो आई थिंक इट इज मच मोर फ्रेंडलियर, क्योंकि हम लोग यहाँ क्लास करने आए हैं, मैम का डांट सुनने आए हैं ना. तो इन दैट केस वैसे ही हम लोग अगर प्यार से प्रेम से पढ़ाई करेंगे तो देखो हम लोग का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, और OBHRM में आप बहुत अच्छा नंबर भी लाओगे, है ना. बस OBHRM में नहीं लाना है, पूरा सेमेस्टर में अच्छा नंबर लाना है. बात समझ गए? यस मैम. आपका एग्जाम्स कब होगा फिर भी आपको पता है कुछ? स्टार्ट कब हुआ सेमेस्टर? मैम अक्टूबर में तो स्टार्ट हुआ. ओके, अक्टूबर. अभी तो नवंबर ही चल रहा है, अभी टाइम है बहुत. चलो, कोई हरी नहीं है, मतलब ऐसा ऐसे ऐसे करेंगे. इंटरनल एग्जाम कब होगा पता है? कॉलेज में कुछ बोला नहीं है. एज इट इज आपका नॉन CU है, तो इसमें तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि कॉलेज मार्क्स भी देता है. अगर CU होता तो फिर प्रॉब्लम होता, यस क्योंकि मैम. CU मार्क्स नहीं देता है. इन स्पाइट ऑफ उनके कॉलेज के प्रोफेसर ही पढ़ाते हैं, बट उनके कॉलेज के प्रोफेसर ही चेक करते हैं कॉपी, बट बहुत बहुत स्ट्रिक्ट है उनके प्रोफेसर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट है. तो मूविंग ऑन टू the caused behavior. The behavior of the employees is caused and not random. हम लोग जो काम करेंगे उसके रिपोर्केशन हम लोग को वापस मिलेगा. अगर हम लोग एम्प्लॉयज को अच्छा बिहेव करें तो एम्प्लॉयज भी हमारे साथ अच्छा बिहेव करेगा. अगर हम लोग लॉयल है तो एम्प्लॉयज भी हम लोग के साथ लॉयल रहेगा. लेकिन अगर हम लोग एम्प्लॉय के साथ कोई चीटिंग कर रहे हैं, कोई दगाबाजी कर रहे हैं, कोई धोखेधारी कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयज भी हमारे साथ वही करेगा. तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जो कर रहे हो या आप जो दे रहे हो, आपके स्टूडेंट्स भी आपको वही रिटर्न में देंगे, या फिर आपके जो एम्प्लॉयज है वो भी आपको वही रिटर्न में देंगे. तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी जो भी काम करो मन सच्चे से करो और उसमें कोई खोट ना रखो. The manager must realize the basic principle and correct his behavior and tackle the issue as its root.
मतलब बेसिकली अगर कोई भी काम हो रहा है, कोई भी गलती हो रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको तभी एकदम जड़ से ठीक कर दो, क्योंकि शायद ये प्रॉब्लम बाद में जाके और बड़ा प्रॉब्लम भी बन सकता है। ह्यूमन डिग्निटी, द स्टेट्स द पीपल वांट टू बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हर एक आदमी चाहता है उसको मान सम्मान मिले। So every job, however simple, entitles the people to do its proper respect and recognition of their unique aspirations and ability. हम लोग को याद होगा, हम लोग के स्कूल के टाइम में, हम लोग के स्कूल में मासी रहती थी, तो मासी हम लोग को हेल्प करती थी। दे आर द नॉन टीचिंग स्टाफ, बट स्टिल उनका कितना हाई रोल होता है आपको पता भी नहीं। हर एक काम वो करती है जिससे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इन दैट केस हर एक काम का डिग्निटी होता है, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट बोला जा रहा है, जिसमें आप हर एक एम्प्लॉय को आपके अंदर जो भी सबॉर्डिनेट्स है उसका उसका अच्छा बिहेव करना, उसको बिना मतलब ना डांटना, उसको बिना मतलब ना कोसना, ये करे तो बेहतर होगा। क्योंकि उनका भी एक अलग लाइफ है, वो भी वहां पे काम करने हैं, अपना रिस्पेक्ट गंवाने नहीं है कुछ पैसों के लिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप अपने मॉरल वैल्यूज को करेक्ट रखो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ऑलवेज इन्वॉल्व्स पीपल एथिकली, फिलोसॉफिकली एंड आल्सो इन्वॉल्व करते हैं अदर ईच सेक्शन को। So human decisions cannot and should not be made on devoid of values. वैल्यूज के ऊपर खड़े नहीं दिया जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे इमोशंस भी होते हैं, तो इमोशंस को भी सेटअप करना चाहिए। Organizations and social system. So it is both connected, interconnected. Consequently, activities are governed by social as well as psychological laws, and the people also have social roles and statuses. So their behavior is influenced by their group and as well as their individual tribes. So important है कि हम लोग connected रहे, हम लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है आसपास, and also we are connected through social system. म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, दोनों में सेम इंटरेस्ट होना चाहिए। दोनों एम्प्लॉय एक साथ काम कर, लेकिन दोनों में एक का बहुत मन है कंपनी के साथ काम करने का, कंपनी को आगे बढ़ाने का, और एक को कोई मन नहीं है काम करने का। तो वैसे इंसान को और मोटिवेट करना, उसे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देना, ताकि वो उसको भी मोटिवेटेड फील हो, उसको भी काम करने का मन हो। लेकिन कोई इंसान अगर बार बार मांगते रहे, उसको काम करने का मन ही ना हो, तो फिर उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, वो बस आपका फायदा ले रहा है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट प्रोवाइड्स अ superordinate goal that united the variety of needs and also the people bring to organizations. जितने भी लोग एक साथ आ रहे हैं काम करने के लिए, it's very important for them to have a mutual interest and mutual trust amongst themselves, ताकि काम smoothly हो पाए। Now we move to the last point, which is the holistic concept. This concept interprets people, organizational relationship in terms of the whole person, and the whole person, the whole group, the whole organization, and the whole social system. It takes an all-encompassing view of people in organizations in an effort to understand as many as possible, and that influence the behavior. So in that case, कुछ ऐसे decisions जो whole person को affect करे, whole team को, whole group को, whole organization को affect करे, whole social system को affect करे। तो अगर ऐसा कुछ concept है, so this encompasses the view of organization। मतलब अगर वो approve करे हर एक level पे लोग, तभी उसको approve किया जाए, तभी उसको लिया जाए। Otherwise सबके मंजूरी के बिना वो decision ना लिया जाए। बात समझ आई? एक बार यहाँ तक देख लो जो मैंने पढ़ाया। मैम फर्स्ट टू पेज, कंसेप्ट एक बार और बताइएगा। कौन सा वाला? होलिस्टिक कंसेप्ट, पॉइंट से couldn't get you। होलिस्टिक कंसेप्ट बता रहे हो आप, फिर से बोलूं? मैम। ओके, सो होलिस्टिक कंसेप्ट मतलब एक ऐसा कंसेप्ट जो हर एक लेवल पे लोग अप्रूव करे, लाइक होल पर्सन, होल ग्रुप, होल ऑर्गेनाइजेशन, होल सोशल सिस्टम। अगर अभी आप बोलो कि मैं अब से 10 दिन 15 दिन नहीं खाऊंगी वीक में, या फिर मंथ में, तो फिर क्या ये feasible है? 10-15 दिन कौन नहीं खाता? जो ऋषि बन जाता है वो नहीं खाता। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट बता रहे हो कि ऑफिस में कोई भी 15 दिन खाना नहीं खाएगा, तो ऐसे कैसे चलेगा? तो ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन अगर ये बोले कि अब से हम लोग वीक में 3 डेज एक साथ खाना खाएंगे, तो ये होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है। हाँ, तीनों दिन एक साथ खाना खाएंगे तो खाना शेयर होगा, बातें होंगी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा ऑफिस में। बात समझ में आया? ओके,
आप ये फर्स्ट 2 पेजेस देख लो, मैं ज़ूम आउट करती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप ये करो। दिख रहा है ना फुल स्क्रीन? आप ज़ूम करोगे तो दिखेगा आपको। आप एक बार देख लो, तो मैं ज़ूम आउट करके रखती हूँ। आप एक बार देख लो पूरा, ये वाला और ये वाला। उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे जाएँगे। 4, 5, 6 बस, और 3 पॉइंट है। 4, 5, 6 तो पहले 1, 2, 3 क्लियर कर लो। कोई डाउट रहेगा एक बार आराम से देख लो। मैं और थोड़ा ज़ूम करूँ या फिर दिख रहा है? मैं और थोड़ा ज़ूम करूँ या दिख रहा है? मैम ब्लर हो रहा है। अब ठीक है मैम। एक बार देख लो, कोई डाउट मुझे बताओ। मैम क्लियर है इतना। मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ। ऐसे सबके पास मटेरियल नहीं है। आप यहीं पे देख लो, कोई डाउट रहेगा आप पूछो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हो गया? नीचे स्क्रॉल करूँ मैं? यस मैम।
मैम कॉस्ट बिहेवियर इम्पोर्टेंट ज़्यादा। कॉस्ट बिहेवियर मतलब द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉयज कॉस्ट एंड नॉट रैंडम। मतलब अगर मैं आपको जानबूझ के बहुत प्रेशर दे रही हूँ, बहुत काम का प्रेशर दे रही हूँ, तो आप तो रिएक्ट करोगे ना। अगर मैं आपको बहुत होमवर्क दे रही हूँ, हद से ज्यादा होमवर्क, 5-6 क्वेश्चन ठीक होता है। अगर मैं आपको 500 क्वेश्चन हर दिन का होमवर्क दे रही हूँ, तो आप तो गुस्सा करोगे ही ना, आप इरिटेट हो जाओगे। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसा कुछ ना बिहेवियर करें विद एम्प्लॉइज ताकि वो आउटबर्स्ट करें। तो मैनेजर को ये समझना चाहिए कि हम लोग करेक्ट बिहेवियर तभी एक्सपेक्ट कर पाएंगे जब हम लोग अच्छा काम करेंगे विद एम्प्लॉइज। अगर हम लोग एम्प्लॉइज को गुस्सा दिला दे रहे हैं, उसके साथ जानबूझ के झमेला कर रहे हैं, तो वो भी ऑब्वियसली एक कॉस्ट बिहेवियर दिखाएंगे ना, वो भी गुस्सा दिखाएंगे हम लोगों के ऊपर। बात समझ रहे हैं? आगे बढ़ो। Yes, ma'am. बस ये 3 पॉइंट देख लो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। मूविंग फॉरवर्ड, Importance of OB. OB क्यों important है? Organization behavior क्यों important है? OB provides a roadmap to our lives in our organizations. एक हेल्प करता है, गाइड की तरह एक गाइडेंस मिलता है हम लोग को with OB. So people bring to their workplace their hopes, dreams as well as their fears and frustrations. वो लोग अब जैसे जैसे अपना होप या ड्रीम लेके आते हैं ऑफिस में, वैसे वो लोग डर और फ्रस्ट्रेशन भी उनको होता है ऑफिस में. So much of time people in organizations may appear to be acting quite rationally. वो लोग कोई भी काम सोच समझ के करते हैं, क्योंकि करना अभी मतलब
एक्सपेक्टेड है कि वो बड़े हो गए हैं, तो अभी उनका डिसीजन लेना, उनका सोचना क्या करना है नहीं करना है वो सोच के ही करेंगे. Fair share of work and doing about their tasks in a civil manner. Suddenly, a few people appear distracted, their work slips, they even get withdrawn. कुछ कुछ लोग गायब हो जाते हैं. गायब मतलब वो फिजिकली तो प्रेजेंट है वहां पे, लेकिन उनका मन नहीं है वहां पे काम करने में. तो ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. Worse still, so one may find someone taking advantage of that of others and further his or her personal interests. So the manager in the business establishment is concerned with getting things done through delegation. डेलीगेशन मतलब काम कराना थ्रू योर नेक्स्ट सबऑर्डिनेट. खुद काम नहीं करके वो काम किसी और से कराना हम लोग डेलीगेशन कहते हैं. So he or she be successful when he or she can motivate subordinates to work for better results. अगर मैं आपके सब मेरे डेलीगेशन मतलब मैं अपने बच्चों को मैं आपको अगर ये मोटिवेट कर पाऊँ कि नहीं बच्चों आप करोगे अच्छा, एग्जाम में अच्छा होगा, आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर ये मैं आपको मोटिवेट कर पाऊँ, तो in that case मैं सक्सेसफुल हूँ while making the decision of making you do the work. और आप अच्छा रिजल्ट करके दिखा रहे हो. So OB will get the help of the manager to understand the basis of motivation and what he or should do to motivate subordinates. मोटिवेशन देना कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे देना पड़ेगा और क्यों, इससे क्या हो सकता है लाइफ में. ऑब्वियसली मोटिवेशन से कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है अगर करेक्ट मोटिवेशन देने वाला आदमी हो, करेक्ट सपोर्ट करने वाला आदमी हो. तो इंडिया में क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कितने लोग हैं, बहुत गिने चुने. तो इसीलिए लोगों को सपोर्ट करना सीखे, ना ही बस क्रिटिसाइज करे लोगों को. So third is the field of OB is useful for improving the cordial industrial labor relation. So if an employee is slow in his or her work and if his or her productivity is steadily declining, मतलब आस्ते आस्ते उसका काम का स्पीड कमता जा रहा है और काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, it is not always because of a poor work environment. इसका मतलब ये नहीं है कि इसका ऑफिस खराब है या फिर ऑफिस के एम्प्लॉयज खराब है. इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ऑफन द indifferent attitude of the boss makes the worker lazy. अगर बॉस को कुछ आता जाता ना हो, कौन दे रहा है, कब सबमिट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इससे एम्प्लॉयज जो है वो लेजी बन जाएंगे. इसीलिए सिमिलरली द रिलक्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट टू टॉक टू यूनियन लीडर्स अबाउट इश्यूज माइट प्रोवोक देम टू गिव अ स्ट्राइक कॉल. इसलिए कभी कभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकता है. इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पहले से सतर्क रहें, आप पहले से काम अपना डेडिकेशन मन लगा के करें. नेक्स्ट पॉइंट, ओबी हेल्प्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आपके पास जितना भी रिसोर्सेज है उसको बेस्ट यूटिलाइज करना, उसको कैसे उसके मतलब जितना भी है आपके पास उसी से कैसे खुश रहना होता है, ये पॉइंट आपको सिखाता है. सो वो भी हेल्प्स मैनेजर्स टू मैनेज द पीपल बिहेवियर. साथ ही साथ इफेक्टिवली कैसे काम करेगा. सो इट एनेबल्स द मैनेजर्स टू इंस्पायर एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज टुवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी. अगर एम्प्लॉय अच्छे से काम करेगा, एम्प्लॉय क्या करेगा, प्रोडक्शन बढ़ाएगा. जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ओवरऑल इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज को भी मदद होगी कि उनके भी सैलरीज बढ़ेंगे. तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है. शायद आज कोई हेल्प कर रहा है तो परसों जाके उसका रिजल्ट दिखेगा. So improving the people skill, you need to understand people, you need to understand today's people, today's generation properly. As to have success in today's organization, लोगों को समझना बहुत important है क्योंकि लोग ही आपको पैसा देने वाले हैं. So employees need to improve their skills through a little effort and showing the basic common courtesy in the business dealings like being polite, avoiding conflict, बात सुनना, appreciate करना, ये जो कि फ्री में हो जाता है. ये सब करने के लिए कोई पैसा भी नहीं देना पड़ता है. तो इन दैट केस अगर आप उसमें किसी से अच्छे से बात कर लो या किसी को आप अप्रिशिएट कर दो, इसमें आपका तो कुछ जाएगा नहीं लेकिन शायद आपको कुछ मिल जाए. तो इम्पोर्टेंट है कि आप नेचुरल बिहेव करो, आप अच्छा बिहेव करो, कॉन्फ्लिक्ट में मत जाओ, झमेला मत करो. So on the other hand, employees should also concentrate on more training employees with this above context. और employers को भी सीखना चाहिए कि हम employees को अगर ये expect कर रहे हैं behavior, तो उनको ये training भी देना जरूरी है कि वो कैसे react करेंगे अलग अलग situations पे. So improving the people skill, उन्होंने कहा अभी इसी का मतलब होता है कि आप लोगों के से बात करेंगे, लोगों से कैसे डील करेंगे, ये आपको सीखना पड़ेगा.
Responding to globalization when the world is changing. So organization in recent days has changed the lifestyle or style of working and tries to spread worldwide. So tripping new marketplace in new technology on reducing the cost through specialization or cheap labor has fueled the factors or the different reasons that motivates organizations to behave or become a goal. फोर हो गया इसमें कोई में किसी में भी डाउट है स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर 4 में 5 में चले जाऊँ मैं लास्ट वाला पॉइंट एक और बार बताइए ना। Responding to globalization. So, organization in recent days has changed the style of working. So, worldwide, trapping new marketplaces, new technology, reducing cost of specialization or cheap labor, or few different reasons that motivates organizations to become global. So, when you're connected global, आप देखना दुबई या फिर बाहर के countries में they usually take Indian laborers or Indian men. Why? Because we agree or we settle for lesser money. बट क्या यूएस में आप एक मेड ढूंढने जाओ मेड का इतना पैसा होगा कि आपके आधा सैलरी वही ले लेगा तो फिर आप कैसे खाओगे आप कैसे अपना घर चलाओगे तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ आगे बढ़े हम लोग नीड को कैटर करें लेकिन एक्सीड ना करें मोटिवेट करें खुद को काम करने के लिए खुद का काम खुद करने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली आप अगर खुद का काम खुद नहीं करोगे तो किसी को करवाना पड़ेगा तो करवाओगे तो आपको उतना पे करना पड़ेगा तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े और काम रिड्यूसिंग कॉस्ट जहाँ से भी हो सके उसको चीपर लेबर में कन्वर्ट करें समझ आया Okay, so should I move on to the next point? या आप एक बार देख लोगे दिस द फर्स्ट क्लास तो मैं थोड़ा बोल रही हूँ कि आप थोड़ा स्लो चलिए आराम से सब समझ समझ के विद द फर्स्ट चैप्टर ये समझोगे तो बाकी सब समझने में बहुत इजी हो जाएगा Should I move on? Next points? हाँ मैम हो गया। So let's move ahead. The shortcomings of वो भी अब हर चीज़ का अच्छा ही पढ़ेंगे इसका मतलब नहीं है हर एक चीज़ का अच्छा बुरा दोना होता है तो shortcomings मतलब डिसएडवांटेजेस ऑफ वो भी क्या क्या है पहला है failure of individual to the domestic front. The subject helps an individual to understand the human behavior better only in the workplace. He or she may be a failure in a domestic front. People who have a thorough counting of behavioral disciplines have sometimes proved to be total wreck in the personal life. कुछ कुछ समय होता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ह्यूमन बिहेवियर ऑफिस में बहुत अच्छा करते हो शायद वो घर में उतना अच्छा ना काम करे या फिर बस वो दिखावा के लिए ऑफिस में काम कर रहे हो घर में वो उतना अच्छा नहीं हो लेकिन इससे बेसिकली कंपनी को जाता जाता नहीं है बट अगर वो घर में डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं या घर में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं तो एक ना एक टाइम के बाद ये घर का प्रॉब्लम ऑफिस में भी आएगा तो ये
घर का बिहेवियर हम लोग जज नहीं कर सकते, हम लोग बस ऑफिस का बिहेवियर जज कर सकते हैं थ्रू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। फेलियर टू कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। अब देखो, आप जितना भी बोलो, ऑफिस में बॉस के सामने सब कोई दोस्त रहता है, बट बीच पीछे कोई भी दोस्त नहीं है, हम लोग को पता है, सब दुश्मन है एक दूसरे के, सब कॉम्पिटिटर्स है। तो इसीलिए जेलसी, बैक स्टैबिंग, लेग पुलिंग, इंट्रीग करना, गुस्सा दिलाना, harassment करना, inequality, reward go by side by side, along with nice lectures, training programs, discussions, smiles, assurances and necessities. So in that case, अगर हम लोग बुराई को साइड में रखें, हम लोग बुराई को अच्छे से रिप्लेस करें, अगर हम लोग अपना काम करते जाए, लोग करवन्ने वादिकार से माँ फलेश शुक्र, आप अपना अच्छा काम करते जाओ, देखो कौन क्या इम्प्रूव कर पाता है, बाकी भगवान के हाथ छोड़ दो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तब तक आप अपने तरफ से एफर्ट देते रहिए, आप अच्छा सिखाते रहिए, आप अच्छा बोलते रहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा वो भगवान के भरोसे छोड़ दो। So OB is selfish and exploitative, so it serves only the interest of the management, and ये regular emphasis, motivation, efficiency, productivity और competitive spirit लाता है। ये अलाउ नहीं करता कोई फंक्शन या हार्मनी विद वन अनदर। मतलब कभी कभी लोग कम्पिटिटिव हो जाते हैं, कम्पिटिटिव होने की वजह से कभी कभी सेल्फिश और ओवर एक्सप्लॉइटेटिव भी हो जाते हैं। कंपनीज में एम्प्लॉय बहुत सीधा साधा है, तो उसको बोलते हैं आप ये ओवर टाइम कर लो, आप ये कंप्लीट कर लो, अब वो कंप्लीट कर लो, अब वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है, उसको चुपचाप सुनना पड़ रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी विद एम्प्लॉयज। एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्विक फिक्स सॉल्यूशंस। कभी कभी हम लोग कुछ भी काम फटाफट कंप्लीट करने के लिए या फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं। So a serious problem that has plagued the subject in tendency of managers to expect quick fix solutions. And from behavioral programs, critics of OB wonder whether the idea that has been developed and tested during periods of organizational growth and economy or economic plenty will endure the equal success under different conditions or not. Future environmental shall be marked by shrinking demand, scarce resources, more intense competition, where organizations stagnate the decline and encounter a threat of closure, and there will be conflict and stress. As a result, it leads to one of the most critical issues to firms answers to related questions. इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग कुछ भी काम करें उसमें क्रिटिक्स का बात सुने। अगर हम लोग कोई बोल रहे हैं कि ये सूट नहीं कर रहा है या शायद आप इसे बेहतर कर सकते हो, तो हम लोग उसका बात सुने ताकि हम लोग और भी बेहतर हो पाए। अगर हम लोग किसी का बात नहीं सुन के वे बेइंग एडिलोस मतलब एग्रेसिव हो जा रहे हैं, हम लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो शायद कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, स्ट्रेस बढ़ सकता है, और स्ट्रेस बढ़ने से बस आपके आंसर्स तो मिलेंगे नहीं, आपको सोल्यूशन तो कभी नहीं मिलने वाला है और झमेला बढ़ने वाला है। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग कनेक्टेड रहें एंड वी ट्रस्ट ईच अदर, वी हैव अ म्यूचुअल ट्रस्ट। Point number 5, OB will not totally abolish conflict and frustration. It can reduce them. OB के साथ साथ हम लोग बस conflict को resolve नहीं कर सकते, कभी कभी ये और भी create कर सकता है problems. So in that case, absolute answer to problems OB है। अगर हम लोग proper whole fabric of organizations को use करें तो problem को solve करने के लिए, तो OB will not solve unemployment. ओबी मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे सॉल्व करेगा, पॉवर्टी को मिटा सकता है, नहीं मिटा सकता। तो ये सब के लिए ओबी नहीं है, ओबी बस सेटअप बना बनाया ऑफिस के लिए है, ऑफिस बनाने के लिए ओबी का कोई काम नहीं है। सो इट विल मेक अप ऑफ ओवर डिफिशिएंसीज, जो कमी है वो कमी आपको देखनी पड़ेगी और कमी को सुधारनी पड़ेगी। सो इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट अ पुअर प्लानिंग, इनेप्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड इनएडिक्वेट कंट्रोल। ये सब चीज़ों को कंट्रोल करने में, ये सब चीज़ों के साथ चलने के लिए यू हैव टू यूज अ डिफरेंट टेक्निक। ओबी विल नॉट हेल्प यू out of all of these situations. But समझ students, should I move to the point number 6 or should I wait for you to read and confirm me? Should I wait for you students कि आप देख के बताओगे कोई डाउट है या नहीं, या फिर should I move on to point number 6 which is the last point for today? 6 वाला करवा दीजिए। Okay.
So let's move ahead to the last point, point number 6, organizational behavior in the global context. अच्छा, उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों के कॉलेज का टाइमिंग क्या है, प्रियंका एंड रोशनी, ताकि मैं क्लासेस असाइन कर पाऊँ आप लोगों को। मैम मेरा इवनिंग और कॉलेज आपका है। आईबी और आपका आईबी भी मैं ही लूंगी, इंटरनेशनल बिजनेस। और रोशनी मेरा भी इवनिंग है, इवनिंग है। इवनिंग है, चलो कोई बात नहीं। तो आप आपका कॉलेज 4 बजे से चालू होता है गेस? मैम मैम 5। 5 बजे। तो मतलब 4 बजे आपको लगभग घर से निकलना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तो 4 बजे के पहले तक का क्लास लेने से फीजिबल होगा, राइट? यस मैम। तो मैं मॉर्निंग में रख दूं? मैम अच्छा, मैं बताती हूँ कौन सा टाइमिंग, एक मिनट रुको। क्योंकि अब आपका आईबी भी मैं ही लेने वाली हूँ। आपको मेरा टीचिंग टेक्निक समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ओके, क्योंकि अभी हम लोग का सफर काफी लंबा होगा, इसलिए आपको मेरे साथ थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ेगा, है ना? मैं आप लोगों को फिजिकल तो देखी नहीं हूँ, बट दोनों बहुत प्यारी लगती हो, नाम से तो बहुत प्यारी लगती हो। आप लोग मैसेज कर देना मुझे, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगी। मैं एक बार बताती हूँ आपको टाइमिंग क्या रख सकती हूँ मैं। अगर मैं आपका क्लासेस ट्यूसडे रखूँ, और ट्यूसडे तो होगा ही आपका क्लास, दोनों क्लास होगा बैक टू बैक। ट्यूसडे आपका क्लास 10:30 11:30, 10:30 से 12 तक, फिर 12 से 1:30 तक आपका क्लास होगा ट्यूसडे को, ठीक है? जो कि आईबी और ओबीएचआरएम का होगा। और आपका मैं क्लासेस रखूंगी सैटरडे। कर पाओगे आप क्लास? ठीक है, मैं एक बार सर से बात कर लेती हूँ। 12 से 1:30 ना, तो उसका भी उधर भी 4 बजे मेरा खाली ही रहेगा। 4 से तो आपका कॉलेज चालू हो जाएगा ना। ठीक है, मैं देखती हूँ, सैटरडे में असाइन करूंगी, ठीक है? ट्यूसडे एंड सैटरडे होगा सर। कंफर्म रहेगा। ट्यूसडे और सैटरडे तो कंफर्म रहेगा, और उसके साथ कब होगा मैं बता दूंगी आपको, ठीक है? मैम ट्यूसडे बैक टू बैक क्लास रहेगा। दो क्लासेस रहेंगे, 2 क्लासेस ना। पहला क्लास रहेगा आईबी का या फिर ओबीएचआरएम का, उसके बाद वाला क्लास रहेगा आईबी का। 2 अलग अलग सब्जेक्ट है ना। ठीक है मैम। बैक टू बैक नहीं कर सकते? मैम सर का भी क्लास रहता है ना, 2 आवर्स का, और फिर आपका 2 आवर्स का। तो ये मेरा 3 आवर्स करेगा, 1.5 आवर्स करके ना। अच्छा, मैं बात करती हूँ सर से, क्या क्या कंफर्टेबल रहेगा आपको, ठीक है? तो आपको कंफर्ट देख के क्लास रखा जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्लास तो आप ही करोगे, मैं आपको बस पढ़ाऊंगी ना। आपको सुनना पड़ेगा, और आप में अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? और नेशनल बिजनेस भी मैं ही लूंगी। तो आज तो हम लोग ओबीएचआरएम का ले लिया, नेक्स्ट डे हम लोग आईबी का स्टार्ट करेगा, तो एटलीस्ट। और मैं चाहती हूँ ना, मैं आपको एक बार बिना प्लानिंग बताती हूँ कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ। कि मैं एमकॉम में सारा मैं पढ़ाती हूँ थ्योरीज, एमकॉम बीकॉम में। तो मेरा प्लानिंग क्या रहता है, मैं एक बार आपको बताती हूँ, आप एक बार समझो। जैसे आपका यहाँ पे ओबीएचआरएम में ओबी एक मॉड्यूल है, एचआरएम एक मॉड्यूल है। इसके अंदर 4 चैप्टर है, इसके अंदर 4 चैप्टर है। टोटल कितना हो गया? 8 चैप्टर्स। वैसे इंटरनेशनल बिजनेस में भी आपका 2 मॉड्यूल है, ठीक है? लेकिन उसमें आपका 9 चैप्टर्स है। आईबी में आपका 2 मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल में आपका 5 चैप्टर्स है, और सेकंड मॉड्यूल में 4 चैप्टर्स है। टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 9 चैप्टर्स हो गया। मैं क्या करती हूँ यूजुअली, मैं एक एक मॉड्यूल से एक एक चैप्टर करके कराती हूँ। सपोज आज मैंने ओबी का पढ़ाया चैप्टर 1, तो नेक्स्ट क्लास में एचआरएम का पढ़ाऊंगी चैप्टर 1। बात समझ आया? और नेक्स्ट क्लास सपोज एचआरएम का चैप्टर 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं ओबी का 2 में नहीं जाऊंगी। जब तक ये एचआरएम कंप्लीट नहीं होगा,
HRM का चैप्टर 1, तब तक कि HRM का चैप्टर 1 कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर मतलब OB का चैप्टर 2 में जाएंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है ना, इससे हम लोग का सिलेबस साइमल्टेनियसली कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि बस OB कंप्लीट हो गया फिर HRM पूरा बाकी रह गया, IB का मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया, मॉड्यूल 2 पूरा बाकी रह गया। तो मैं ऐसे करके प्लान करती हूँ कि पहले हम लोग दोनों मॉड्यूल को साथ में लेके चलेंगे। बात समझ आया? जैसे IB का मैं नेक्स्ट दिन क्लास कराऊंगी, तो IB का मैं चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 कराऊंगी। जब IB का चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 कराऊंगी और जब मैं IB का सेकंड क्लास लूंगी, अगर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सही है, अगर नहीं हुआ तो फिर से हम लोग चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 करेंगे। अगर कंप्लीट हो गया तो फिर हम लोग चैप्टर 1 मॉड्यूल 2 करेंगे। बात समझ आया? यस मैम। तो मैं ऐसा प्लान करके चलती हूँ कि आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए और हर एक चैप्टर्स में, हर एक मॉड्यूल में इक्वली फोकस रहे, क्योंकि आपके दोनों मॉड्यूल से 20 मार्क्स आने वाले हैं, आपको पता है आई गेस। तो इन दैट केस दोनों मॉड्यूल को इक्वल इंपॉर्टेंट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्यूसडे को ये वाला टाइमिंग जो आप कर रहे हो, ये वाला कंफर्टेबल है आपका 10:30 वाला? यस मैम। बस ऐसे बात कर लेती हूँ कि आपका नेक्स्ट क्लास में कब दूंगी और क्या होगा, तो फिर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि सिलेबस फटाफट कंप्लीट करना है, उसके बाद टेन्योर सॉल्व करने हैं, है ना, उसके बाद मैं टेस्ट भी लूंगी, बहुत सारा काम है। तो टोटल 8 + 9 मतलब 17 चैप्टर्स है हम लोगों का कंप्लीट करने के लिए, जो कि इसमें से आज कंप्लीट हो जाएगा एक चैप्टर, तो मतलब 16 चैप्टर बच के। बात समझ आए? अब स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। सो इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, so globalization is interpreted as a worldwide phenomena or a process, एक process है। क्या process है? Sometimes economic and monetary policies together facilitate the process or the process of globalization. Some of the economic dimensions of globalization are expansion of international trade, cross-border labor mitigation or migration, क्रॉस बॉर्डर फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट भारी भरकम वर्ड्स हम लोग को मिल रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या मिल रहे हैं? इकोनॉमिक डायमेंशंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्रॉस बॉर्डर लेबर मिटिगेशन, लेबर को इस पार से उस पार लेके जाना, जो बेसिकली सोनू सूद ने किया था ड्यूरिंग कोरोना वायरस पीरियड, कोविड-19 के समय पे, जहाँ पे सबको घर बंदी हो गया था, तो उनको मिटिगेट करना, उनको माइग्रेट करना, ये भी एक पार्ट था ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मतलब ये भी एक पार्ट था ऑफ द कंपनी, ऑफ बॉर्डर फ्लो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। So, from the OP point of view, the biggest concern of globalization is the impact and influence of multinational and transnational companies. तो इसमें बड़े बड़े कंपनीज का इन्फ्लुएंस होता है, वो जो डिसीजन देंगे उसको मानना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही बड़े टॉप शोर कंपनीज हैं, उनका डिसीजन ना मानना मतलब अपने तरफ और दुश्मन बढ़ा देना। So participation of these companies in trade, investment and production expanded the international communication. जब ये बड़े बड़े कंपनीज ट्रेड में, इन्वेस्टमेंट में, प्रोडक्शन में हेल्प करने लगे या फिर अपना बिजनेस बढ़ाने लगे, तो ये भी अपना बिजनेस बढ़ाते बढ़ाते इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मतलब विदेश पहुंच गए। इसीलिए ग्लोबलाइजेशन आज इतनी इक़्तिदार में बढ़ रहा है और इतना हम लोग का देश आगे बढ़ रहा है। सो वेरियस क्रॉस कल्चरल इश्यूज के साथ साथ नाउअडेज इवन टू ऑपरेट लोकली, इंडिया organizations need to track these issues and regularly renew करना with their business practices, change करना the mindset of people। अब लोगों के माइंडसेट तो होते हैं कुछ अलग अजीब से, तो इन दैट केस अगर लोग कुछ गलत सोचे, लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर क्लैरिटी की जरूरत है, तो जरूर उनको क्लैरिटी मिले। तो globalization has many dimensions. The most general dimension is economic globalization, पैसे की वृद्धि basically. So OB studies are now increasingly becoming complex due to the global effects of globalization, and some of the important areas of concern are changing technology with a sharp increase in the cross-border technology transfers, the mobility of organizations and people in the global world, the competition for markets and customers on a global scale, etc. तो हर एक चीज़
जैसे क्रॉस बॉर्डर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मोबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेके चलना, कंपटीशन फॉर मार्केट और ऑल्सो देखना कि ग्लोबल स्केल पे हम लोग कैसे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को हेल्प करती है इन मूविंग फॉरवर्ड. So globalization can be taken to mean the increasing trend to interrupt or interact beyond physical boundaries. And the cause of globalization includes deregulation, privatization of public sectors in certain boundaries or countries, टेक्नोलॉजिकली कन्वर्ज करना, एक साथ आ जाना, कंपटीशन बढ़ा देना. ग्लोबलाइजेशन का यही काम है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट धड़ाधड़ बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगा पा रहे हैं, पैसा बाहर भेज पा रहे हैं और इंटरनेशनल पार्टनरशिप हो पा रही है. तो इसके वजह से एक पर्सपेक्टिव जो है बिजनेस का ये और बढ़ रहा है. 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात किया जा रहा है, मल्टीनेशनल, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल. The cascading effect of globalization even transcends to the tasks of the operational environment of business organization. तो ये हेल्प करता है ओवरऑल बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एनवायरनमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के साथ रिलेशन अच्छे करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, ताकि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हम लोग का विदेश में बढ़ता रहे. The changes in the operational environment not only requires focus on new products or services development, but also skills, competencies, sets, attitude, value, cultures of the people. Such changes are primarily attributable to the shift in the expectations of customers and behavior of competitors. Competitors का behavior कैसा change हो रहा है, कैसा काम चल रहा है, ये सब भी जानना काफी important है. So globalization has also changed the nature of managerial work, and ये देखना managers के साथ साथ काम करना globalized era, it will increase the judgmental power and the use of persuasion and influence, also shape करना behavior of the people. ये सारे पार्ट किसके हैं, ग्लोबलाइजेशन के हैं. तो इसी को साथ में लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी हम लोग का देश का भी वृद्धि होता रहेगा और पर्सपेक्टिव्स चेंज होंगे और इफेक्टिव गोल्स रीच कर पाएंगे हम लोग इन करेक्ट टाइम. That is how we complete this chapter. Chapter number 2 हम लोग अभी स्टार्ट नहीं करेंगे. हम लोग का नेक्स्ट सेम रहेगा एचआरएम का चैप्टर नंबर 1. ओबी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स. नेक्स्ट विल स्टार्ट विद एचआरएम इंट्रोडक्शन. तो ओबी एचआरएम का इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर्स ग्रेजुअली. अंडरस्टूड? कोई डाउट स्टूडेंट्स? No, ma'am. अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो आपको लिख के मुझे दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास. एक बार लिख लो आप. कॉपी पेन रेडी कीजिए. रेडी है? Okay, so let's start. What do we mean by OB? What do we mean by OB? And mention the features of OB. Mention the features of OB. Mention the features of OB. Should I move to the next question? Yes, ma'am. How does mutuality of interest? How does mutuality of interest? How does mutuality of interest act as a fundamental concept? Act as a fundamental concept. Act as a fundamental concept of OB.
Explain what is the importance of OBE. Explain what is the importance of OBE. And what are the disadvantages of OBE? And what are the disadvantages of OBE? Next, explain organizational behavior in the light of globalization. In the light of globalization. Organizational behavior. Explain organizational behavior in the light of globalization. Done, students? हो गया मैम। मैम बुक्स तो अभी है ही नहीं, पढ़ेंगे कैसे? मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी या फिर आप पीडीएफ मांग लो ऑफिस से, ठीक है? ओके मैम। हाँ, और आप बुक कलेक्ट क्यों नहीं किए अभी तक? अक्टूबर में आपने अक्टूबर में लिया था ना एडमिशन? हम अभी बुक सब प्रिंट नहीं हुआ, ऑफिस से कहा। ओके ओके, तो आप ऐप में हो ना? आप क्या नाम है आपका? बायोटेक क्लासेस ऐप में हो ना आप? यस मैम। तो ऐप में भी अपलोडेड रहता है पीडीएफ्स। आप एक बार बात कर लो ऑफिस से, पीडीएफ ऐप में अपलोडेड रहता है स्टूडेंट्स के लिए, ओके ठीक मैम। है? ओके मैम। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप आंसर्स लिख पाओगे। और लिखने के बाद आप पेपर में लिखने के बाद उसको आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर मतलब बेसिकली आप इसको कैप्चर करके एक पीडीएफ बना लेना, बना के मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैम। Okay then. See you next class. Hope you have a good day. Bye bye.